Mohenjo-daro, a planned urban center. Okay, perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. The most unique या distinctive artifact was the Harappan scene, and the most distinctive feature was the डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर. इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसका कंटेम्प्रेरी जो कि मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन था वहाँ पर हमें वी सी नो स्ट्रक्चर ऑफ सिविलाइजेशन, नो स्ट्रक्चर. द स्ट्रीट्स वर like crowded, running into each other. There was no proper planning or formation of structure, nothing. तो हड़प्पन्स में हमें देखने को मिलता है there is a very well developed planned structure जिसके ऊपर सारी all the constructions stand on. Let us look at one such center, Mohenjo-daro, more closely. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was Harappa. Please remember this. First site was Harappa, but the most well-known site of the Harappan civilization is Mohenjo-daro. Harappa was the first one. Let's quickly look at this figure, layout of Mohenjo-daro. Okay, this is a layout of Mohenjo-daro. You can see citadel, REM area, L area. These are the names. Of course, we have designated the lower town, and you can see all of The settlement is divided into two sections. अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे मोहनजोदारो की we are looking looking at Mohenjo-daro, and इसमें देखेंगे कि how the settlement was well planned. First of all, it was divided into two sections. The two sections were citadel and lower town. One was smaller but higher. The citadel was smaller, of course, than the lower town, but it was higher, and the other much larger but lower. Archaeologists designate these as the citadel and the lower town respectively. The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. तो citadel में सबसे पहले platforms बनाए गए जिसके ऊपर फिर the buildings were constructed. That is why it was higher than the lower town. It was walled, which meant it was physically separated from the lower town. So of course there were mud brick platforms and it was walled, fortified. The lower town was also walled. Several buildings were built on platforms which served as foundations. It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundations in place, it would have required 4 million person days. In other words, mobilizing labor on a very large scale. तो ये लोअर टाउन और सिटाडेल एंड ये स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग से हमें पता चलता है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, वॉल्स है, इससे हम लोग ये एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि बहुत लार्ज स्केल पे लेबर्स का यूज़ हमें लगता है टू कंस्ट्रक्ट समथिंग लाइक दिस, ओके, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. Consider something else. Once the platforms were in place, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platforms. So it seems, तो सबसे पहले मतलब ये प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई. दैट मीन्स द सेटलमेंट वुड फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड. पहले प्लानिंग की गई, ओके दिस वाज द एरिया, यहाँ पर ये बनेगा, और फिर उस प्लेटफॉर्म पे ये डिफाइन था कि इस प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी और इसका ये यूज़ होगा. So the settlement was perfectly planned and then implemented. Other signs of planning include bricks, which whether sun-dried or baked were of a standardized ratio, while the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. Throughout Harappa, throughout the civilization, हमें प्लानिंग दो तरीके से देखने को मिलती है. पहला, द प्लेटफॉर्म्स वर मेड जिसके ऊपर बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड, सो द सेटलमेंट वाज प्लान्ड. एंड सेकेंडली, द ब्रिक्स यूज, दे वर ऑल सन ड्राइड और बेक्ड एंड दे वर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो. सबका रेशियो साइज सेम था. वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times. दैट मीन्स इफ यू सी द हाइट वाज x, द ब्रेथ वुड बी 2x एंड द लेंथ वुड बी 4x. तो ये स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो था for the bricks. The plight of Harappa. Although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by brick robbers. क्यों हड़प्पा इतना famous नहीं है though it was the first site? Because it was badly destroyed by brick robbers. As early as 1875, Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India, please remember every word is important, often called the father of Indian archaeology, noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay bricks for about 100 miles of the railway line between Lahore and Multan. Thus, many of the ancient structures at the site were damaged. In contrast, Mohenjo-daro was far better preserved. हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, लेकिन जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया, जो कि इंडियन
आर्कियोलॉजी के फादर माने जाते हैं एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने बताया कि हड़प्पा में जितनी भी साइट्स मिली है वहाँ से ब्रिक रॉबर्स ने ब्रिक्स चुरा चुरा के लाहौर से मुल्तान तक के लिए 100 मील 100 माइल्स तक के लिए रेलवे लाइन को उन्होंने ले कर दिया उसी ब्रिक्स का यूज़ करके. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट बीन वेल प्रिजर्व्ड एंड दैट इज़ वाई मोहनजोदाड़ो ज़्यादा फेमस है बिकॉज इट वॉज मोर बेटर प्रिजर्व्ड. अ ड्रेन इन मोहनजोदाड़ो, नोटिस द ह्यूज ओपनिंग. देखिए ये ड्रेन है एंड यहाँ पर आपको एक इंसान खड़ा हुआ दिख रहा है, तो यू कैन सी कि कितनी बड़ी ओपनिंग है इस ड्रेन की. आज भी हमें सीवेजेस, ट्रेन्स वगैरह नीचे अंडरग्राउंड सब देखने को मिलते हैं. Laying out drains, one of the most distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage system. देखिए हर चीज़ में हमें कितनी प्लानिंग दिख रही है. Settlement was planned, citadel, lower town, and अब drains were also planned. If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern, intersecting at right angles. इसका मतलब क्या होता है? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने को मिलता है जैसे ये एक स्ट्रीट है, राइट, ये स्ट्रीट से राइट एंगल पे एक और स्ट्रीट है, उससे राइट एंगल पर एक और स्ट्रीट है, तो एक ग्रिड पैटर्न में हमें यहाँ पर भी अगर आप बहुत ही उससे देखेंगे तो देखिए कितना एक ग्रिड पैटर्न हमें देखने को मिलता है. राइट एंगल्स पे सारी स्ट्रीट्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे फज नहीं बन रहा है. सो ये जो है बहुत ही यूनिक फीचर है हड़प्पा का कि एवरीथिंग वाज सो वेल प्लान्ड, स्ट्रीट्स वर वेल प्लान्ड, एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न था हर चीज़ का. And it seems that the streets were with drains were laid out first and then houses built along them. तो हमें ये स्पेकुलेट इससे होता है कि सबसे पहले स्ट्रीट्स बनाई गई, ड्रेन्स बनाई गई एंड फिर उसके बाद उनके अलोंग हाउसेज वर बिल्ट. ओके, सो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जितना भी था, इफ इट हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट. समझ रहे हो आप? तो मतलब ऑल द हाउसेज वर अप फ्रंट. हर हाउस से स्ट्रीट दिखता है हमें, हर हाउस के लिए एक स्ट्रीट के अलोंग वॉल होना ज़रूरी है क्योंकि जितना भी वेस्टेज है, सीवेज है, वो स्ट्रीट ड्रेन में फ्लो होना था. ओके. Citadels. While most Harappan settlements have a small high western part and a large lower eastern section, ठीक है, there are variations. देखिए smaller but higher western section, ये west में है, ओके, स्मॉल है बट हायर है, एंड लार्ज है बट लोअर है, ईस्टर्न सेक्शन है, कुछ वेरिएशंस है. साइट्स सच एज ढोलावीरा एंड लोथल जो कि दोनों गुजरात में है, द इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स. तो जैसे यहाँ पर जो है वो सिटाडेल अलग फोर्टिफाइड था, लोअर टाउन अलग फोर्टिफाइड था मोहनजोदाड़ो में, बट ये पूरा फोर्टिफिकेशन नहीं था. ओके, ये अलग वॉल्ड था, ये अलग वॉल्ड था, लेकिन ढोलावीरा और लोथल में ये अलग अलग वॉल तो थे लेकिन साथ में ये दोनों भी फोर्टिफाइड थे. द सेटाडल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट एट अ हाइट. लेकिन लोथल में सेटाडल जो था उसको वॉल्ड नहीं था लेकिन वो एक हाइट पे बिल्ड किया गया था. डोमेस्टिक आर्किटेक्चर. द लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. मतलब ये हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि सिटाडेल जो था वो अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था एंड इट वॉज द लोअर टाउन जहाँ पे लोग रहते थे रेसिडेंट्स के लिए. Many were centered on a courtyard with a room on all sides. देखिए यहाँ पर आप इसका लेआउट देखते जाइए जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ. दिस वॉज द कोर्टयार्ड, ओके, एंड इस कोर्टयार्ड के आसपास सारे रूम्स बिल्ट थे. तो ये रहा हमारा कोर्टयार्ड एंड दीज आर ऑल द रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड. द कोर्टयार्ड वॉज प्रॉबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर. पहले भी हमें अगर आप थोड़े से पुराने घरों में देखेंगे आपको आंगन देखने को मिलेंगे. हमें देखने को मिलते हैं आंगन होते थे, बीच में तुलसी होती थी एंड वो आंगन के आसपास चारों ओर रूम्स बिल्ट होते थे. तो ये उसी तरीके का थोड़ा सा हमें देखने को मिल जाता है. सॉरी, ओके. एंड या व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज एन अपरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी. देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard. तो यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा प्राइवेसी लोगों में देखने को मिलता है. देखिए डोर यहाँ पर है एंड द कोर्टयार्ड इज हियर विच इज़ द सेंटर ऑफ ऑल मेन एक्टिविटीज़. तो ऐसा नहीं कि घर में घुसते ही पूरा दिख रहा है कि क्या चल रहा है. घर में घुसने के बाद देयर वाज सम थोड़ा सा एक प्राइवेसी थी एंड उसके बाद आप कोर्टयार्ड में घुसते हो.
ऑल्सो ग्राउंड लेवल पे आप ये वॉल देख सकते हो, फर्स्ट स्टोरी में देर आर नो विंडोज़, ठीक है, जिससे कोई ऐसे बाहर का डायरेक्ट व्यू ना मिले। एंड एक सेकेंड स्टोरी भी थी, देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है, ये स्टेयर्स है, ये अपर स्टोरी, सेकेंड स्टोरी, तो बहुत ही वेल प्लान स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विथ ब्रिक्स। तो ये यहाँ पर ये जितना भी हमें पता चलता है कि हड़प्पन के टाइम से ही हर घर में एक वॉशरूम था, उसको प्रॉपरली ब्रिक्स के का यूज़ करके पेव करते थे, मतलब वेल फॉर्म्ड वॉशरूम था ये, ओके। एंड द वॉशरूम वॉज कनेक्टेड टू द ड्रेन्स इन द स्ट्रीट। तो वॉशरूम का जितना भी मटेरियल होता था, फीकल मैटर होता था, वो डायरेक्टली स्ट्रीट्स में, ड्रेन्स में चले जाता था, ओके, ड्रेन्स में। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस, सेकेंड रूफ कुछ घरों में देखने को मिल जाता है। मैनी हाउसेज हैड वॉल्स often in a room that could be reached from the many houses had wells। तो बहुत सारे घरों में वेल्स होती थी, एंड वो वेल ऐसी होती थी जो कि आप बाहर से आउटसाइडर कोई उसको रीच कर सके, मतलब उसे घर में घुस के ना जाना पड़े, वो बाहर से भी उस वेल को एक्सेस कर सकता था, जो कि पासर्स बाय पानी वगैरह पीने के लिए यूज़ कर सकते थे। Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700। So this was again something very unique कि पासर्स बाय के लिए वेल्स होना, कि आप पास कर रहे हो, प्यास लगी तो आप पानी पी सकते हो, घर में डायरेक्ट घुसना ना पड़े, आप बाहर के बाहरी पानी पी के निकल सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। द मोस्ट एंशियंट सिस्टम गेट डिस्कवर्ड अबाउट द ड्रेन्स। मैके, अर्नेस्ट मैके, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937। हमने सैडल पॉइंट के बारे में पढ़ा था। अगेन मैके की हम अलग एक और बात पढ़ रहे हैं, लेकिन दिस इज फ्रॉम अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। That was further excavation at Mohenjo-daro 1937. This is early Indus civilization 1948, both written by Ernest Mackay. Mackay noted about the drains, it is certainly the most complete ancient system as yet discovered. Every house was connected to the street drains. The main channels were made of bricks, set in mortar, and were covered with loose bricks that could be removed for cleaning. तो ड्रेन्स होती थी, उन ड्रेन्स को ब्रिक्स के थ्रू कवर किया जाता था, वो ब्रिक्स लूज होती थी ताकि कभी भी ड्रेन्स को क्लीन करना हो, क्लॉग ना हो, तो वो ड्रेन्स रिमूव करी जाए, क्लीन कर सके उसको, एंड वापस से ब्रिक्स लगा सके। द मेन देवर सेट इन मोर्टार, जैसे आज सीमेंट होती है, ऐसे उसको प्रॉपरली सेट किया जाता था ब्रिक्स को, okay। In some cases limestone was used for the covers. House drains first emptied into a sump or a cesspit into which solid matter settled while wastewater flowed into the street drains। तो जितने भी जैसे हाउस के जो होते थे, ड्रेन्स होती थी, सबसे पहले बड़ा सा पिट जैसा होता था जहाँ पे जितना भी फीकल मैटर है वो सेटल हो जाता था, और वाटर जो था वो स्ट्रीट ड्रेन्स में फ्लो कर दिया जाता था, ओके, फ्लो हो जाता था। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम्स फॉर क्लीनिंग। बहुत बड़े बड़े लंबी लंबी ड्रेन्स होती थी और इंटरवल्स होते थे जहाँ पर क्लीनिंग करी जा सके, मतलब एरियाज होते थे जहाँ पर क्लीनिंग कर सके वो लोग, उस ड्रेन्स की ओपन एरिया होता था। इट इज़ अ वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी दैट लिटिल हीप्स ऑफ मटीरियल, मोस्टली सैंड, हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड लाइंग alongside drainage channels, which shows that debris was not always carted away when the drains was cleared। तो ऐसा होता था कि ड्रेन्स को क्लियर करके कोई भी मटेरियल जो कचरा फंस गया है, पानी को जो जाने नहीं दे रहा है, फ्लो नहीं होने पा रहा है प्रॉपर्ली, तो उस मटेरियल को क्लीन करके साइड में ऐसे पिट्स बना दिए जाते थे, हीप्स बना दिए जाते थे, एंड फिर वो हमेशा क्लियर नहीं करा जाता था, इस वजह से हीप्स बन गए साइड में। Drainage systems were not unique to the larger cities but were found in smaller settlements as well। हर सेटलमेंट, स्मॉल हो बड़ा हो, मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े बड़े सेटलमेंट में भी, या चानूदारो जैसे छोटे छोटे सेटलमेंट्स में भी हमें वेल सेटल्ड सिस्टम, एक प्लान दिखता है। At Lothal, for example, while houses were built of mud bricks, drains were made of burnt bricks। तो घर तो बड़ी थोड़ी कच्ची मिट्टी ऐसे ब्रिक्स के बने, मड ब्रिक्स के बने थे, लेकिन ड्रेन्स फॉर ऑल सेट इन बर्न्ट ब्रिक्स, पक्की, ओके। वेयर इज द कोर्टयार्ड, वेयर आर द टू स्टेयरकेसेस, व्हाट इज द एंट्रेंस टू द हाउस लाइक। दिस इज द कोर्टयार्ड, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द एंट्रेंस टू द हाउस, एंड द एंट्रेंस इज, इट्स नॉट गिविंग अ डायरेक्ट व्यू, एंड दीज आर द टू स्टेयरकेसेस, एक यहाँ पर है एंड एक यहाँ पर है। दिस इज एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ अ लार्ज हाउस इन मोहनजोदाड़ो। देयर वाज अ वेल इन रूम नंबर 6। वेयर इज द रूम नंबर 6, ये देखिए, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7। तो रूम नंबर 6 में ये एक वेल है और ये ओपन होता था जहाँ से पासर्स बाई भी जा सके और उनको घर में ना घुसना पड़े। द सिटाडेल, it is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes।
These include the warehouse, a massive structure of which the lower brick portions remain, while the upper portions probably of wood decade long ago, and the Great Path. तो लोअर टाउन में हमने देखा कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मिलती है. सिटाडेल वॉज प्रॉब्ली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए. यहाँ पे हमें दो स्ट्रक्चर्स मिले हैं. एक है वेयर हाउस के नीचे वाला एरिया जो ब्रिक्स का बना हुआ था, तो उसके लोअर पोर्शंस बचे हुए हैं. ऊपर का पोर्शन प्रॉबली वुड से बना होगा, तो वो सब वुड डिके हो चुका है अब. एंड दूसरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है द ग्रेट पाथ. तो ये रहा, देखिए द वेयर हाउस, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके, द ग्रेट पाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाई अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स. तो जो ग्रेट पाथ था वो बहुत बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर टैंक था और उसके चारों तरफ कॉरिडोर था चारों तरफ. एंड देयर वर 2 flights of steps ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक. तो मतलब देखिए, जैसे कि एक अगर ग्रेट पाथ है, सपोज मैं आपको एक यहाँ पर ये देखिए, ये रहा ग्रेट पाथ, ये और ये अगर आप क्लियरली देखेंगे तो दीज आर द स्टेयर्स जो कि हमें ग्रेट पाथ में एंटर होने में. इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कोर्टयार्ड है. ओके, ऑन द एज एंड यूजिंग मोटर ऑफ जिप्सम. एक जिप्सम के बारे में हम सब ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कैल्शियम का होता था. देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स. तो ग्रेट पाथ के चारों तरफ कोर्टयार्ड थे जिसके 3 साइड तो रूम्स थे. ओके, फॉर प्रोबेबली चेंजिंग, ड्रेसिंग वगैरह जो भी होता था. वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन. ठीक है, तो जितना भी टैंक का पानी होता था, आप एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन कर पा रहे, राइट. तो वाटर जितना भी होता था वो एक बड़े से ड्रेन में फ्लो होता था. अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम्स. तो नॉर्थ के यहाँ पर के अक्रॉस एक 8 बाथरूम्स होती थी. एंड 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. तो हर बाथरूम से कनेक्टेड एक ड्रेन होती थी. The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings, has led several scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath. तो अभी तक हम लोग इतना स्पेकुलेट नहीं कर पाए हैं, इतना डिवाइस नहीं कर पाए कि ये ग्रेट पाथ किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था. बट जैसे जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मिला है, मतलब सिटाडेल में मिला है, सिटाडेल में सिर्फ स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए, सेवरल यूनिक पर्पसेस के लिए जो बिल्डिंग होती थी स्पेशल पर्पसेस के लिए वही मिली है. तो सिटाडेल जैसी जगह पर मिला है, इसका यूनिक स्ट्रक्चर, इन दो चीज़ों से हम लोग एक स्पेकुलेट करते हैं कि कहीं ना कहीं पर ये कोई ना कोई स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था. दिस इज़ द प्लान ऑफ सिटाडेल. देख सकते हैं कॉलेज, ग्रेट कोर्टयार्ड एंड warehouse, stairs and great path, pillared hall and ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. ओके, दिस वाज ऑल बाय मार्शल. ये देखिए मार्शल्स डीप ट्रेंच, मार्शल व्हीलर, REM व्हीलर्स डीप ट्रेंच. मतलब ये कैसे अलग अलग लोगों ने यहाँ पर स्टडी करा है इस एरिया को, एक्सकेवेशन, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह सभी. विच ऑफ द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदड़ो इंडिकेट प्लानिंग. क्या क्या फीचर्स मोहनजोदड़ो के हैं? लोअर टाउन, सिटाडेल, वॉल्ड, फोर्टिफिकेशन, streets and streets intersecting at right angles, drains, every house connected to a drain, every street connected, drains running along every street, every house having wall in the along with the street, and the bricks, the standardized ratio of the bricks. All of this show, और the formation, the construction of platforms जिसके ऊपर buildings बनती थी. all these show indicate planning. Are there other structures on the citadel apart from the warehouse and the great path? Yes, the pillared hall हम देख सकते हैं, great courtyard and the stupa area. These are great path and the warehouse. These are other structures जो कि हमें उस पर देखने को मिलता है citadel में, apart from the great path and the warehouse.